Hey you, I hope you're doing absolutely fine. Welcome to the fifth podcast of Inside Buddha. Thank you so much for the great response you have shown over the past couple of podcasts. It has been so overwhelming. Also, we are now on YouTube, so if you're not following us or you're not subscribed yet, then what are you doing? Go and subscribe it now. I'll wait for you. Subscribe yet? So, okay then, let's move on. Today I'm really excited because we have someone so special with us. She is someone who is a self-made person. She has cracked n number of companies, and the cherry on the cake, she's an EC student. Her name is Manjari Jain, and she is currently working in Bank of America, and soon this month she will be moving to PayPal. And the companies that she has cracked, it is a dream of many CS and IT students. So maybe you're EC student, maybe CS, IT, or maybe any other branch. So this video is going to be special for you because today we'll be walking down the road of every student and every self-made student, and they want to do something great in their life. So if you are ready, grab your seatbelts tight and let's hop directly into the video. Okay. Hey Manjari, how are you? How have you been? I'm good. How are you doing? Thanks for having me here. Thank you, thank you. It's great to have you, and I am so nervous because I am facing someone who has so much of experience for the first time. So let's start then. Yeah, sure. Okay. So Manjari, you are an EC student, right? So how did you find your path in IT and holding such a strong position now? Yeah, so basically, जब मैं I was in 11 and 12, तो उसमें I have a very strong phobia against coding. So my aim was to avoid coding as much as possible, to not to even go to coding and something. So when I went to the counseling for VIT, so I do have the options to take CS or any other coding branch or IT or something. But I chose the closest and safest option, which was easy, because I did not like physics में जो gravitational force होती है या rotational force होते हैं, वो तो मैंने बड़ी मुश्किल से पास की थी. तो उसकी उसकी वजह से बट मुझे लगता था कि कैपेसिटर रेजिस्टर्स दे आर मच बेटर, वो हो सकते हैं मतलब. तो फिर इसलिए आई चूज दी इजी. एंड फिर मैंने सोचा कि जिंदगी के 4 साल अब शॉर्ट हो चुके हैं, अब आगे उसके बाद क्या जॉब करनी है या हायर स्टडीज करनी है, आई विल फिगर आउट इन प्री फाइनल या फाइनल ईयर में. तो उस वक्त ऐसा कोई प्रेशर नहीं था. आई वाज लाइक कि चलो जिंदगी का एक पहर पहर कंप्लीट हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं. तो और मेरे में ये दिमाग में ये मिसकंसेप्शन था कि अगर आपने इंजीनियरिंग लेनी है तो आपको कोडिंग नहीं करनी, लाइक आपकी अगर कोडिंग से ब्रांच नहीं है. बट जब मैं कॉलेज पहुंची तो जैसे जैसे सेमेस्टर्स बढ़े या नए सब्जेक्ट्स आए या प्रोजेक्ट आए या लास्ट में आए, तो वो मिसकंसेप्शन टूट गया. क्योंकि आप ईसी के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कोडिंग से तो जरूर कनेक्टेड हो. आप किसी ना वे से या डायरेक्टली अपनी मर्जी से हो या प्रोफेसर की मर्जी से हो या सब्जेक्ट में पास होना है उसकी मर्जी से हो, बट कहीं ना कहीं कर रहे हो आप कोडिंग. तो स्टार्टिंग में तो मैं कोडिंग बस इसलिए ही पढ़ती थी कि मतलब पास हो जाए, एक अच्छा सीजीपीए बन जाए, और मुझे वीआईटी की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली थी तो वो भी मेंटेन हो जाए. तो उसके लिए फिर उसके बाद जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़े और ऐसे ऐसे, तो कोडिंग में जबरदस्ती सीखती थी, अपनी मर्जी से नहीं सीखती थी. बस यही कि हाँ जीना है तो सहना पड़ेगा. राइट. फिर उसके बाद तो भी फिर मैं हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट करती थी या थोड़े बहुत कोडिंग चैलेंजेस देते थे. बट और उसमें हार्ड टाइप का था. जैसे उसमें कुछ चैलेंजेस ऐसे होते थे जिसमें मैं बिल्कुल कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती थी, कुछ चैलेंजेस ऐसे होते थे जिसमें सब लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करते थे, एंड कुछ चैलेंजेस ऐसे भी होते थे कि जिसमें मैं ही कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ. सो आई हैव डन ऑल दैट फेज, एंड मुझे सारे फेजेस के प्रोज और कॉन्स पता है. सो दे ऑल्सो मोटिवेटेड मी कि हाँ अब कुछ कर सकते हैं. बट असली मोटिवेशन मेरी लाइफ में थर्ड ईयर में आई, व्हेन आई वाज इन कंपनी सारी भी प्लेसमेंट्स के लिए.
लाइक इंटर्नशिप के लिए या पीपीओ के लिए या पीपीआई। तो उसमें आई हैव अ क्यूरियोसिटी कि भाई मुझे जानना था कि ईसी वाले कितना पैकेज उठाते हैं या बाकी ब्रांचेस वाले कैसे हैं। एक क्यूरियोसिटी थी बस, जस्ट टू सी कि रियल लाइफ में कैसे चलता है काम। तो इसी हो ना हो या फिर जिस प्रोफाइल का डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था उसका पैकेज सही में अच्छा होता था। लाइक हाँ, तो उससे मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसा है क्या भाई कि दुनिया इतना पागल है उनको इतना पैसा देने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने सीएस या आईटी के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे बात करती हूँ कि मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई तुम्हारी 1 घंटे की क्लास होती है क्या, तुम उसको 2 घंटे में जाके देके आते हो क्या? या ये अगर कोई डेली असाइनमेंट है वो 5 पेजेस का है तो तुम क्या 25 पेजेस में सबमिट करके आते हो क्या? कि तुम्हें इतना अच्छा बढ़िया पैकेज मिलता है। तो या दे वर स्टूपिड क्वेश्चंस, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि तुम लोग ऐसा क्या करते हो। लाइक एक क्यूरियोसिटी थी। तो मेरे जितने भी सीएस आईटी के फ्रेंड्स थे तो उन्होंने ये बोला कि ईसी मैकेनिकल या सिविल वाले वो तो हमसे भी ज्यादा मेहनत करते हैं भाई, वो तो सबसे ज्यादा ही पढ़ते हैं। एंड और उन्होंने बोला कि हर सब्जेक्ट में कोडिंग नहीं होती, कुछ सब्जेक्ट थ्योरी का भी होता है, कुछ सब्जेक्ट से प्योरली कम प्रोजेक्ट बेस में होता है। और जितना कोडिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उससे ज्यादा शायद तुम कोडिंग हमसे ज्यादा कर रहे होगे कि आर्डिनो में काम करके या रास्पबेरी पाई पे काम करके, उससे ज्यादा कोडिंग तुम कर रहे हो। तो उन्होंने यही बोला कि इट्स जस्ट अ टैग, उससे फर्क नहीं पड़ता। सीएस और सीएस तो कोई भी सीख सकता है, इट्स एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी। आप यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हो या कोर्स दे सकते हो, जो भी आपको पसंद आया वो कर सकते हो। और इट जस्ट उन्होंने ये बोला कि जस्ट अ टैग, मतलब अगर मुझे ईसी पढ़ना है तो मैं वो जाके भी पढ़ सकता हूँ, अगर तुम्हें सीएस पढ़ना है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बस पैशन आना चाहिए। बट या आफ्टर सीइंग द कंपनसेशन और ऑल द बेनिफिट्स, क्योंकि इट माइट मेक मी साउंड अ लिटिल सेल्फिश और ग्रीडी, बट इट्स ओनली बिकॉज कि जिसके पास अगर जिसको हायर स्टडीज नहीं करनी है, जिसको सिक्योर रहना है 4 साल के बाद और अच्छी हाई पेइंग जॉब्स चाहिए, तो अगर कोई बोल रहा है कि मैं अगर तुम्हें एबीसीडी आती है बट अगर तुम 1 2 3 4 सीख लोगे तो मैं तुम्हें 10 15 रुपए ज्यादा दे दूंगा, तो बंदा क्यों मना करेगा? एग्जैक्टली एंड ये मिसकंसेप्शन भी है बहुत जगह कि ईसी वाले को और कोडिंग का कोई रिलेशन है नहीं, बिकॉज आई एम टू फ्रॉम ईसी, बिकॉज एम्बेडेड सिस्टम एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसमें भी हम लोग कोडिंग यूज़ करते हैं, राइट। आईओटी जैसे यू ऑल्सो मेंशन कि रास्पबेरी पाई, एड्रीनो, तो इस सब में कोडिंग लगता ही है ना। सो वही है कि मिसकंसेप्शन है, एंड आई थिंक जितना जल्दी ईसी वाले समझ जाए इट्स बेटर। या मतलब आई एम सेइंग कि जिसको ईसी में जाना है वो तो ईसी ले सकता है, बट अगर कोई इंजीनियरिंग में आ गया और ये सोच के आया कि बेटा मुझे कोडिंग नहीं करनी क्योंकि मेरी सीएसआईटी की ब्रांच नहीं है, तो वो गलत मिसकंसेप्शन है। कोडिंग से तो आप पीछा नहीं छूट सकते, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। और जितने भी मेरे नॉन टेक के स्टूडेंट्स हैं या बीबीए के स्टूडेंट्स हैं या मेरे बीकॉम के फ्रेंड्स हैं, तो वो सब खुद ही इन्फ्लुएंस होकर इतना बोलते हैं कि हाँ हम लोग एक कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। सो वो भी समझते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है। एंड सो या दैट मोटिवेटेड मी। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे या कुछ सीनियर जो उस वक्त अच्छी कंपनीज में काम करते हैं, तो उन्होंने भी मुझे ये दिया था कि अगर कोई बंदा एसटीसी प्रोफाइल के लिए जा रहा है तो वो तुम्हें इस बात के पैसे नहीं देते कि तुम कितना अच्छा कोड कर लेते हो। वो तो ऑफकोर्स है ही, लाइक वो तो है ही, प्री रिक्विजिट है कि तुम कोड कर लेते हो तभी लिया है। बट वो इस बात के भी पैसे देते हैं कि तुम कितना एक्सपर्टीज अपना दे सकते हो आगे चल के। वो तुम्हारी नॉलेज एक्सपीरियंस के पैसे देते हैं कि आगे चल के कल को हम रिटायर हो गए तो ये बंदा हमारी कंपनी ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। सो दैट फेथ इन योर सेल्फ, उसके लिए कंपनी पैसे देती है कि भाई आगे चल के तुम्हें ही डिसीजन लेने हैं, हम तो रिटायर होने वाले हैं। तो दैट ऑल्सो मेड मी वेरी मोटिवेटेड कि हाँ अब करना चाहिए। वही एग्जैक्ट। और वन मोर थिंग कि कोडिंग इज नॉट ओनली फॉर आईटी एंड लाइक सीएस, बिकॉज हम लोग को कोडिंग ये चीज़ सिखाते हैं दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। जैसे रियल वर्ल्ड का कुछ प्रॉब्लम है, राइट। उस दिन कुछ हमने गिटहब पे कुछ देखा कि समवन किसी ने बनाया कुछ स्टूडेंट्स के लिए, राइट, एंड उसने एक मेजर इशू उधर सॉल्व किया। तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो डे टू डे लाइफ में आई डोंट थिंक कि जैसे अभी लॉकडाउन है, घर बैठे कोई डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा। नेटफ्लिक्स एंड चिली कर रहा है वो लोग, सब लोग, राइट। तो अगर वो लोग कोडिंग कर रहे हैं, माइंड थोड़ा ब्रशअप भी होता है उससे। एग्जैक्टली। सो ग्रेट पॉइंट्स ओवर देयर। एंड व्हाट वाज योर लाइक जर्नी, लाइक आउटलाइन क्या होगा
like you started from college, I think third year से you got that conception कि हाँ कुछ करना है अभी, right? तो like can you just give us an overview कि वो road map कैसे था वो? सो बेसिकली अब जैसे मुझे मोटिवेशन मिल गया था कि अब तो मुझे कुछ एटलीस्ट ट्राई तो मैं पूरा 110% दूंगी, बाकी जो होगा वो भगवान की मर्जी है। तो फिर उसके बाद मुझे बस उस वक्त वो ही आता था, सिंपल फॉर टू लिखना, कंटिन्यूस स्टेटमेंट या सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इन एरे और मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे, लाइक वेरी सिंपल, व्हिच वाज जस्ट लिमिटेड टू स्ट्रिंग्स और मैथ्स और एरेज। उस वक्त मुझे डीए से भी नहीं आता था। So I wanted to कि आप मुझे सब कुछ दोबारा से like I had need to have a proper foundation base। तो उसके लिए मैंने कोडिंग निंजास पे जावा लैंग्वेज ली, क्योंकि मुझे सी प्लस में उस पे पता था कि उस पे पॉइंटर्स होते हैं और पॉइंटर्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए थे उस वक्त। So I was a little conspicuous to take C plus plus एंड पाइथन वाज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो उन्होंने बोला वो तो कभी भी सीख सकती थी, तो जावा वो सम अदर लैंग्वेज, मतलब कुछ अलग ही था, तो मुझे वो सीखना था। एंड तो जैसे ही मैंने अपना फाउंडेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, तो फिर मैंने उसके बाद हैकर पे क्वेश्चन सॉल्व किए या लीड कोड पे देखे, या मैं यूट्यूब पे टेक डोज की वीडियोस बहुत देखती थी, या पेप कोडिंग के जो सुमित सर है वो बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं, वो तो शुद्ध हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं एंड अपनी भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। सो दे हेल्प मी अलॉट। इवन माई पेरेंट्स, इवन माई फ्रेंड्स एंड मेरे जितने भी फालतू से फालतू डाउट्स होते थे कि यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, कॉमा कॉमा भी सेमी कॉलन क्यों डाला है, क्यों डाला है, व्हाई इट्स नेसेसरी सेमी कॉलन, सो उन्होंने बताया एंड ऑफ लाइन के लिए होता है। सो या मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स एंड मूविंग टू द एडवांस लेवल वाज अ ह्यूज जर्नी। बट अगर अभी मुझसे कोई पूछता है कि हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10 इन डीएसए, आई विल स्टिल से 6 और क्लोज टू 6.5, क्योंकि जो इन लाइन में कनेक्टेड है, इस लाइन से जुड़े हुए, हमको पता है कि ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा वास्ट है, इतना ज्यादा वास्ट है कि कोई किसी को सब कुछ नहीं आता, और हर दिन नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, पुरानी टेक्नोलॉजीज जा रही है तो इम्प्रूव हो रही है। तो मुझे एक बहुत बड़ा सागर है, उसमें से मुझे एक बूंद ही आता है, और मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, और अगर कुछ नया नहीं सीख पाती हूँ तो कुछ पुराना इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। Great. So as you said कि you started from coding ninjas, right? But ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग मे बी 5,000 10,000 या चलो कुछ हंड्रेड्स का ही चलो एक कोर्स लिया उन्होंने, राइट? बट इन द लाइक प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या प्रॉब्लम रहता है कि अगर समझ नहीं आता तो एक पॉइंट ऑफ जगह पे जाके अटक जाते हैं हम लोग, राइट? अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो अटक जाते हैं हम लोग एंड फिर सोचते हैं कि कोडिंग शायद मेरे लिए नहीं है, राइट? बट यू सेड कि यू सेड कि स्ट्रक्चर बहुत सही था तुम्हारा, है ना? कि डीएसए करना है, चलो ये करना है, उसके बाद मैंने ये किया। बट फॉर एन लाइक वेरी न्यू कमर और जिसको कोडिंग सीखना है बट वो जो ब्लूप्रिंट नहीं उसके पास, ओके, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि स्ट्रक्चर कैसे करें अपने जो प्रिपरेशन को, उसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाए? जिसको मन है कोडिंग सीखने का, तो पहले करके अपना बेस ही करें। लाइक मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से हार्ड क्वेश्चन नहीं, सिंपल से एक लिंक लिस्ट बना के देखो, सिंपल से हैश मैप खुद से इम्प्लीमेंट करके देखो। एंड अगर और फिर उसके बाद आप जब 2-3 इजी लेवल क्वेश्चंस कर लेते हो, तो एक कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाओ उस टॉपिक को लेके या उस डोमेन पे लेके, क्योंकि आप जब जॉब करोगे ना, तो कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, बीच का पाथ निकालो। वहां पे ना आपको आंसर पता होगा, ना पाथ पता होगा, और क्वेश्चन भी शायद इनकम्प्लीट होगा। क्वेश्चन क्योंकि आप जब रियल लाइफ वर्किंग एनवायरनमेंट में जाते हो, तो जैसे आप सिचुएशन आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही क्वेश्चन और बढ़ता रहता है, और वैसे ही कंडीशंस कॉन्स्टेंट्स आगे आती रहती हैं। सो आई विल से कि जितना अभी आपके पास लर्निंग एनवायरनमेंट है, एक कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाओ, छोटा सा बनाओ, कुछ भी जिसमें कहीं पे भी लिंक लिस्ट यूज हो रही है या ट्रीज यूज हो रही है, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी कि ये चीज मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी है। और व्हेन यू आर एट द स्टेज कि हाँ कि ये चीज मेरे लिए बनी है और मैं इसके आगे अंदर जाना चाहता हूँ, तो आपके पास इंटरनेट है, और आपके पास पूरी रिसोर्सेज है भाई, जितनी भी दुनिया में रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनका यूज करिए। जितने भी आपके आसपास के सीनियर्स है, जूनियर्स हैं, जो आपके दोस्त है और जो इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे आप हमेशा टाई अप करके रखिए, क्लोज बॉन्डिंग बना के रखिए।
एंड क्योंकि कम्युनिटी ही एक दूसरे को हेल्प करती है ग्रो करने में। मैं ना क्योंकि कम्युनिटी में अगर यूनिटी नहीं होगी तो एक अकेला बंदा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर आप कोई भी सक्सेसफुल बंदा कहीं पे भी है, उसके पीछे उसकी फैमिली होगी, उसकी मॉम होंगी, उसके फ्रेंड्स होंगे, एवरीवन इज पुशिंग दैट गाय टू अचीव हिज बेस्ट। सो आई विल से कि फिर उसके बाद जो हार्ड लेवल क्वेश्चंस पे या मीडियम लेवल क्वेश्चंस पे और उसके साथ ही साथ आप अपना प्रोजेक्ट करते रहिए ताकि आपको एक अच्छा क्लैरिटी मिल जाए कि रियल लाइफ एनवायरनमेंट में चीजें कैसे चलती हैं, कैसे चलनी चाहिए। बस एग्जैक्टली मतलब बेसिकली हम लोग कोई भी कोर्स लो या इंटरनेट पे इतने सारी चीज़ अवेलेबल फ्री पे है, सो टेक एनीथिंग, पिक इट अप, फिनिश इट एंड उसके बाद स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, राइट। एक आई थिंक वर्ड है कम्युनिटी लर्निंग। कम्युनिटी लर्निंग एज इन जो बहुत जन लिंक्डइन ट्विटर पे करते हैं कि आज मैंने इतना सीखा, राइट, आज डे 17 आउट ऑफ डे 100 ऑफ माई कोडिंग चैलेंज, सो मैंने आज ये सीखा। तो ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो सीखते ही हैं प्लस जो कम्युनिटी में उसको भी सिखा रहे हैं। सो एंड बहुत जन इसका यूट्यूब वीडियो बना लेते हैं। सो इट्स लाइक वही जैसे हम लोग सोचते हैं कि सी से कंपटीशन ही होता है, हम लोग नहीं सोचते सी से कम्युनिटी होता है। सो कम्युनिटी इज लाइक गिव एंड टेक थिंग। आप जितना दोगे आप ले भी सकते हो सिर्फ, बिकॉज कम्युनिटी तो है ही देने के लिए। सो दैट्स द थिंग। ग्रेट देन। सो नाउ एवरी वन इज हैविंग लाइक अ क्लियर रोड मैप्स कि कैसे कैसे जाना है फ्रॉम पॉइंट जीरो टू पॉइंट वन। ग्रेट। सो मंजरी, your first internship was with Wipro, right? Right. So can you share your experience and also it will be very crucial key in selection process and what to do and what not to do in the selection process for a candidate to get hired in Wipro. Yeah, so basically हमारे लिए on campus थी, so Wipro आई थी and first there was an online test and I will say कि वो इतना ज़्यादा tough नहीं था, it was from easy to medium, 2 questions थे and language any language was allowed and total दोनों ही question DSA पे ही based थे and फिर उस questions को solve करने के बाद they were interview schedule पर क्योंकि आई थिंक तब तक कंपनी जा चुकी थी तो सब कुछ ऑनलाइन हुआ था उस वक्त। तो एक हफ्ते बाद आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम एचआर कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू 1 शेड्यूल हो रहा है एंड इट आल्सो वेंट टिल 45 मिनट्स आई थिंक एंड उसमें भी उसने डीएसए के क्वेश्चंस पूछे थे कि आप ये चीज कैसे सॉल्व करोगे या इसको बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हो या इसकी पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस करोगे। तो उस पे क्वेश्चंस थे। सो इट वेंट अच्छा गया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग द कॉल फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो या आफ्टर 2-3 डेज आई गॉट अ कॉल कि आपका सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं एंड सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू वाज स्लाइटली इजियर देन द फर्स्ट। वो इतना ज़्यादा टफ नहीं था। It was more or less related to hash map or related to binary trees. And then after that, I got a call for the hiring manager round, and it was not technical. It was just like why I want to pursue my internship at Wipro and what I can contribute to the team. And am I willing to relocate to Bangalore for the internship and etc. HR questions. And after the 1 week, I got a mail from the Wipro hiring team that they have shortlisted me for the internship. Great. So as a student who is preparing for like Wipro, so what do's and don'ts he should keep in mind? कि मतलब क्या क्या करना है, क्या क्वेश्चंस और स्पेसिफिकली और इम्पोर्टेंस देना है उस सबको। सो कैन यू जस्ट शेयर दैट? सो बेसिकली सबसे पहला रूल यही है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान को। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए कि एक कोई भी कंपनी अपनी औकात से बाहर है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच के जाओगे कि कंपनी औकात से बाहर है तो फिर तो आपका रिजेक्शन हो, आप ऑलरेडी रिजेक्टेड हो। एंड चाहे वो कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये अपनी औकात के अंदर है या औकात से बाहर है। जस्ट ट्रीट इट एज एनी अदर इंटरव्यू दैट यू टेक एंड गिव इट योर बेस्ट। और उसके बाद आपको कभी हेजिटेट नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में। हमेशा आपको थिंक आउट लाउड करना चाहिए कि आप जो थॉट प्रोसेस है आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इंटरव्यू को हमेशा इंटरैक्टिव रखो, मेक सम कॉन्वर्सेशंस। और जस्ट अगर आप वन साइडेड रहेगा तो वन साइडेड ही रह जाएगा। तो आप हमेशा और उसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है एंड यू नो द ब्रूट फोर्स अप्रोच, स्टार्ट विद ब्रूट फोर्स अप्रोच।
अगर इंटरव्यू अच्छा है एंड दे वांट यू टू टेक इन दे विल हेल्प यू टू मेक द सोल्यूशन टू ऑप्टिमाइज एंड उसके बाद लक भी थोड़ा मैटर करता है। इट्स आपका हार्डवर्क होता ही होता है, बट जहाँ किस्मत होगी वहाँ आपको आपका हो ही जाएगा। एंड अगर नहीं भी होते हैं तो इट डजंट मीन टू बी गेट डिसहार्टेन कि यहाँ नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में बहुत सारी कंपनीज है, अनलिमिटेड कंपनीज है। मैं आपको अगर चांस मिला तो इतनी सारी वीडियोस बनी हुई है, 100 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, उसमें एक कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, 99 तो है ना, कि कॉन्फिडेंस टूटने की क्या बात है भाई। कोई बात नहीं। और रिजेक्शन के भी बहुत अलग रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने गलत परफॉर्म किया, गंदा परफॉर्म किया, इससे आप रिजेक्ट हो गए हो। क्या पता जब तक आपका इंटरव्यू का कॉल आ गया वो पोजीशन ही ऑलरेडी फिल हो चुकी हो। तो उन्होंने फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू ले लिया कि ताकि हाँ इसको भी बुरा ना लगे और हम हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए। सो यू शुड नॉट टेक इट इन एनी हार्ड वे। एंड या रिजेक्शन इज समथिंग बुरा लगता है उस वक्त पे, बट और कोई चॉइस नहीं है, या अगर फाइट तो करना ही है। सही बात है। एंड एक टर्म है जैसे यू मेंशन कि थिंक आउट लाउड, ये बहुत लाइक इंटरव्यूज़ में बहुत सीनियर्स ने भी सजेस्ट किया है कि जस्ट जिनको पता नहीं उनके लिए कि वॉट एवर यूर थिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू आस्क्स योर क्वेश्चन एंड यू आर लाइक having that thought but you're silent at that time, okay, so the interview will obviously think कि maybe he doesn't know the answer and he's just taking up the time, so he will just move to the next question. But in the meantime क्या होगा कि whatever you're thinking maybe that is right, so you're just doing it loud कि okay, what we can do, we can take the first node and we can make the next to the second node, okay, so if that is also there, the interviewer will help you to complete that question, right? Yeah. तो एटलीस्ट जैसे बोलते हैं हम लोग कुछ से कुछ नहीं, है ना, तो कुछ तो बोलो, कुछ नहीं और खराब होता है वो चीज़, राइट? मतलब गिविंग एन आंसर इज स्टिल बेटर देन गिविंग नो आंसर, एंड गिविंग ए ब्यूटीफुल आंसर इज स्टिल बेटर देन गिविंग नो आंसर। तो कुछ नहीं बोलोगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें कितना आता है, तुम कितने पानी में हो। वो तो अपना ओपिनियन बना के रह जाएगा क्योंकि तुम शांत हो, एंड उसकी भी कोई गलती नहीं बिकॉज तुमने कुछ बोला नहीं। एग्जैक्टली या So after receiving a final offer from Wipro for the internship, so like it was a 3 months internship if I'm right? Yeah, it was 2 months. 2 months. Okay, internship. 2 months. Okay, so in that 2 months can you share, because many of are unaware कि internships में होता क्या क्या काम करवाती है कंपनी, डायरेक्ट प्रोजेक्ट दे देती है या सिर्फ पढ़ने बोलती है, राइट? तो कैन यू शेयर कि what was like the environment over there and what are like projects you did, if you are able to share that? Yeah, so basically I was under the SAP Hybris team, and so basically हमने Selenium में automation पे काम किया था. We automated some of the web pages and everything. तो आफ्टर विप्रो, तो कितना डिफरेंस था आफ्टर यू गॉट आउट फ्रॉम विप्रो, लाइक इन इंटर्नशिप वाज ओवर एंड योर नेक्स्ट जॉब लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, उसमें डिफरेंस कितना था, कितना मंथ्स का? So basically my internship got ended in July. जुलाई के फर्स्ट वीक में खत्म हो गई थी विप्रो की, एंड आई गॉट द ऑफर फॉर बैंक ऑफ अमेरिका इन नवंबर, इन लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और नवंबर तक ऑफर लेटर सब कुछ आ गया था कि ऑफिशियली सब कुछ हो गया था. The thing was there was a huge gap in that because I was thinking for doing higher studies, because विप्रो के एक्सपीरियंस के बाद I thought कि आप कोई और बाहर जाने का सोच सकते हैं ये सब. तो उस वक्त मैं जेआरई के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो उस वक्त जितनी भी कंपनीज आई थी मैंने उन कंपनीज पर मैं बैठी नहीं, ना मैंने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया. सो व्हेन आई गिवन द जेआरई, तो जेआरई मेरा इतना अच्छा नहीं गया था. लाइक आई गॉट अराउंड 310, बट मुझे 320 चाहिए था 340 में से. मेरे लिए अच्छा नहीं था. तो मैंने सोचा था कि अभी मुझे जेआरई दोबारा नहीं देना, मतलब अगर देना चाहती हूँ तो नेक्स्ट ईयर या 2-3 साल बाद दूंगी, तब मेरी अच्छी प्रिपरेशन होगी. एंड तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब इस साल तो मुझे खाली नहीं बैठना, तो आई वांट टू टेक द जॉब्स. तो जब मेरे टाइम पे जो कंपनीज आ रही थी वो देवर मेजरली कमिंग फॉर मास रिक्रूटमेंट और बिग ऐसी कंपनीज आ रही थी. तो मुझे किसी जिनका पैकेज 6.5 से कम था, मुझे वो कंपनी में अप्लाई भी नहीं करती थी. क्योंकि मतलब मेरे में वो मार्जिन था कि एटलीस्ट मुझे इतना चाहिए.
तो उसके बाद से एंड अगस्त एंड जुलाई वर द हाईएस्ट हायरिंग पीक दिस टाइम कंपनीज कैंपस में बहुत ज्यादा आती हैं, तो मैंने वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी थी जितनी भी थी। तो या सो इट वाज डिप्रेसिंग मोमेंट कि मैंने सब कुछ अपना एक बास्केट में ही रख दिया था एंड इट डिड नॉट वर्क आउट। तो फिर उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, मैंने सोचा कि अब इस सिचुएशन में जितना भी बेस्ट पैकेज या मिल सकता है आई विल टेक इट एंड आई विल अगेन नेक्स्ट ईयर शायद अगर चांस मिला दोबारा कंपनीज में देने का तो उन सारी कंपनीज में दूंगी जिनमें मुझे इस बार चांस नहीं मिला। Oh, great. One thing I loved about you that वो अंडरमिनेशन नहीं, मतलब खुद के लिए कि आई एम फ्रॉम ईसी सो लेट्स नॉट लाइक compete with CSE students. So जो अपना है you are like हाँ मैं तो लेके रहूँगी. So that I loved about you, and this should be the mentality of everyone, right? कि अगर skill you have the skill, you have the knowledge, right? You have the experience, so why not fight for the best, right? Yeah. Why do settle for the less? Yeah. Great. So Bank of America, huge like big, it will be a big milestone on your career, right? Bank of America. So what was its hiring process, everything? And because everyone the recruiting drives come, everyone stares at that Bank of America, right? It's a huge opportunity. So it would be really great if you share the hiring process of Bank of America first and your experience in it.